Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you are watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है व्हाई फॉरेनर्स प्रेफर पाकिस्तान ओवर Over इंडिया। India। मतलब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को छोड़कर अचानक से पाकिस्तान क्यों जाने बिल्कुल। लगे हैं, ऐसा क्या रीजन है, क्या मतलब कुछ शॉकिंग है वैसे हाँ ये हमारे लिए भी। काफी शॉकिंग है। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। It's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience. Well, you're in a conservative Muslim country. पाकिस्तान के बारे में बात You'd कर expect रहे to be हैं। safe, Mostly, yes. right? Yeah. Yeah. And you didn't feel that in India? Oh, absolutely not. It's the way I've been treated in Pakistan. Even the second time I went back, it was way more hospitable, but it was literally the hospitality I've never experienced in my life. We always respect our guests. Why is everyone in Pakistan so kind? Because we are so beautiful people. Beautiful से पेश आ रहे people. हैं। Love in our heart. Pakistan's हमारे इंडिया में होता तो meets number one hospitality. Like Americans have a really misunderstood idea of what Pakistan is like. I've been here for 2 days and I've mostly been shopping in malls, eating at Western restaurants. And so I just feel like there's a very misunderstood idea of the more modern side of Pakistan. For the next 48 hours, I'm going to be comparing a day in India versus a day in Pakistan. Do a discount for me? No discount, big price. No. ये इंडिया की वीडियो लग रही है Fixed ना। price. You give discount? No, fixed price. 3 meters. 200. floor. No. हाँ इंडिया ही। हाँ, 300. No bargain. अंग्रेजों को तो इतना लूटते हैं। सही बात है। जो चीज 100 की होती है वो 400 की बताएंगे। गलत है ये। कुछ खाएंगे? I only speak a little Urdu. Eat. No, not yet. अच्छा ये पाकिस्तान वाले देखो खाना पूछ रहे I have हैं। maybe ये chai, होती है chai. hospitality। Yeah. देख ये होता है तरीका। और हमारे दे दिए। पेड़ है। पकड़ पकड़ के 400 की 10 रुपए चीज की चीज को वो बोलेंगे चाय पीनी होती ना किसी ने। 100 रुपए की। हाँ। मतलब जैसे अंग्रेजों को कुछ पता ही नहीं है। ये इंडिया की वीडियो है। Only यार one please. Who are you? देख, ये तो हाल है। You? हो गया? Just please, could you let me alone? ये रियलिटी है इंडिया की। चाहे हम इंडियन हैं हाँ। लेकिन हमें भी शर्म आती है। टूरिस्ट को देखते ऐसे पागल हो पागल हो जाते जाते हैं हैं और तमीज नहीं रखते बिल्कुल। Well, I mean, you can't really tell there's water under there. कई जगह I'm है in इंडिया Indore कैसे। right now, and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here, and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. We are on the train in India right now and it absolutely stinks. We are really struggling bad here. And now I have left India. Time for my final review. Don't go that place. Stay far away from India. हम लोगों ने ना Never go there. टूरिस्ट का एक्सपीरियंस सारा खराब कर दिया। Never go there. I will never ever go there ever again. They don't want you there. They do not want tourists. Whatever they say, they do not want you there. इमेजिन करें दो ऐसे मुल्क जो कि सदियों तक एक साथ रहे, एक साथ आज़ाद हुए, और आज 77 साल के बाद दोनों के कल्चर के अंदर बेहद डिफरेंस आ चुका है। एक वो मुल्क है जहाँ पर टूरिस्ट किसी चीज़ का पैसा देने के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन कोई भी मेहमान समझकर इनसे कुछ नहीं लेता। तो दूसरी साइड पर तकरीबन हर शख्स यानी टैक्सी से लेकर होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, सब दुकान वाला लूटने सब को उनको लेता है। लूटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। एक वो मुल्क है जिसका खाना और इसकी सफाई की क्वालिटी का टूरिस्ट खुद एतराफ़ करते हैं, तो दूसरी साइड के खानों खसूसन हाइजीन का दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है। एक वो मुल्क है जहाँ के लोग इंतहाई फ्रेंडली, मेहमान नवाज और कंपैरेटिवली काफ़ी सिविक सेंस रखने वाले हैं कि पब्लिक के अंदर कैसे बिहेव करना है। तो दूसरी साइड पर बस बॉर्डर क्रॉस करते ही सोलो ट्रैवलर्स को, ये तो गलत खसूसन है ना। फीमेल्स को हरासमेंट तक का सामना करना पड़ता है। फीमेल और इसके की अलावा harassment पब्लिक तो के अंदर बहुत तो होती है, सिविक सेंस की foreign बात ही ना करते हैं करें। गलत पर्सनल जगह पे, स्पेस मतलब और ये सिविक सही सेंस नहीं क्या होती है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से फीमेल टूरिस्ट दिल बर्दाश्ता होकर इस मुल्क को छोड़कर आएंगे जाते वो? हुए सही ये बात है। कहती हैं। I hate India. हम बात कर रहे हैं दो हमसाया मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की। आज जहां पर एक तरफ इंडिया का इमेज ट्रैवलर्स और व्लॉगर्स के लिए बेहद बुरा और दिल खराश बन चुका है, तो दूसरी तरफ यही टूरिस्ट व्लॉगर्स पाकिस्तान और इसके कल्चर की तारीफें करते नहीं थकते। So we bought
bottled waters, and then he gave us sandwiches to take a picture, and then he said, keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out ये होता है तरीका 28,000 rupees. इसी की मेहमान नवाजी. And my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa. No money. It's okay. No. वाह क्या बात है. He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. पैसे ही नहीं ले रहे वो. Leave it, man. You are guest, so oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. वाह क्या बात है यार. क्लैपिंग पाकिस्तान के लोगों के लिए. और मैं ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इस टॉपिक पर खुद कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी आवाज उठा चुके हैं कि इनकी हरकतों की वजह से इंडिया की दुनिया के अंदर किस कदर बदनामी हो रही है और इनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है. और दूसरी बात कि आप खुद की रिसर्च करके देखें, यूट्यूब पर जाकर पाकिस्तानी टूरिस्ट स्कैम लिखें तो बहुत ही कम ना होने के बराबर वीडियोस आपको मिलेंगी. सबसे रिसेंट और वायरल वीडियो वो थी यानी 3 टार्ज़न वाली, जो कि कुछ ही देर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था. और दूसरा वाकया हाल ही में हुआ जब नेदरलैंड की एक सोलो ट्रैवलर से पर्सनल क्वेश्चन करने पर 3 पुलिस एहलकारों को मौके पर मुअत्तल कर दिया गया. आप खुद ये पैटर्न नोटिस करेंगे कि वही व्लॉगर जो कि पाकिस्तान की तारीफें करता नहीं थक रहा था, इंडिया के लिए उसके जज्बात बिल्कुल ऑपोजिट होंगे. वही व्लॉगर जो कि इंडिया को डर्टी, अनहाइजीन, खतरनाक, गंदा और अनसेफ बता रहा होगा, वही सेम व्लॉगर आपको पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आएगा. और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो व्लॉगर पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश करने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये इसका ऑनेस्ट ओपिनियन है. क्योंकि लॉजिकली अगर उसको पैसा ही कमाना होता, अपना फायदा ही देखना होता, तो वो इंडिया की झूठी तारीफें करता, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है. और ज्यादा ऑडियंस का मतलब है ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज का मतलब है ज्यादा पैसे कमाने. पैसे, सही बात. अब इंडिया का ये मौजूदा इमेज एकदम से नहीं बना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के फैलने की वजह से टूरिस्ट की यूट्यूब वीडियोस ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का ये इमेज क्रिएट किया. क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि वेस्ट के अंदर बैठे हुए वो लोग जो कि इंडिया घूमने आना चाहते हैं, वो इन्हीं वीडियोस के जरिए ये जज करते हैं कि उनको कहाँ पर जाना है. इन्हीं व्लॉगर्स की वीडियोस को देखकर वो अपना टूर प्लान करते हैं और उनको ये जज करने में आसान होता है कि उनको ट्रैवल कहाँ पर करना चाहिए. और पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, यहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल तबाह होता जा रहा है. और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वेस्ट के कार्टून्स तक में इंडिया का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि इंडिया कहने को तो स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर ना गॉड एग्जिस्ट करता है और ना ही सफाई. India, the most spiritual country in the world. God is not here. एक टाइम था कि इंडिया को स्पिरिचुअल हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था और लाखों फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पिछले 10 से 15 सालों के अंदर सब कुछ बदल दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस के अंदर गंदे खानों की वीडियोस जिनका दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है, और उसके अलावा गरीबी, गंदा एनवायरनमेंट, सफाई पर ध्यान ना देना, खासतौर पर यहाँ के लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी सूरत-ए-हाल और टूरिस्ट स्कैम ने आज इंडिया का इमेज दुनिया भर के अंदर बिल्कुल नेगेटिव बना दिया है. और यही वजह है कि आज कोई भी टूरिस्ट इंडिया जाने से पहले 100 बार सोचता है, और अगर कोई आ भी जाए तो वो बहुत पछताता है. और जब यही टूरिस्ट अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का यही इमेज क्रिएट होता है. जबकि पाकिस्तान में यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि इन फॉरेन ब्लॉगर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि अपना घर, अपना खाना, अपना सब कुछ मेहमानों के साथ शेयर करते हैं. और जब पाकिस्तान का ये इमेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है तो इन 2 कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर फॉरेन टूरिस्ट की पहली पसंद पाकिस्तान ही बनता जा रहा है. अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इन टूरिस्ट को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी, उनका एहतराम होगा, उनकी पर्सनल स्पेस होगी, वो वहीं पर ही जाना पसंद करेंगे. अच्छा लगा मैं सुनकर कि एक मशहूर कैनेडियन सोलो ट्रैवलर रोजी गैब्रियल, जो कि एक फैमिली सोलो ट्रैवलर थी, पाकिस्तान घूमने के लिए आई थी और यहाँ की नेचुरल खूबसूरती, लोगों की मेहमान नवाजी, इज्जत और प्यार को देखकर इतना मुतासिर हुई कि ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी भी कर ली. सोशल मीडिया पर इमोशनल होकर रोते हुए अपनी स्टोरी शेयर करते हुए उसका कहना था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मैं पाकिस्तान विजिट करूंगी तो ना सिर्फ इस मुल्क से बल्कि यहाँ के लोगों से भी मुझे मोहब्बत हो जाएगी. ये मेरी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो कहती है कि एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश इखलाक थे कि मुझे अपने घर ले गए, जो कुछ भी मौजूद था मुझे ऑफर किया, और इनकी यही आदत मेरे दिल को छू गई. चाहे खुद के पास कम है लेकिन ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है. Accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment?
जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया में देखें तो हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि दुकानदार से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक की ये कोशिश होती है कि जितना हो सके इस फॉरेन टूरिस्ट को लूट ले। फीमेल्स के लिए तो तकरीबन यहाँ से हरास हुए जाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, फिर चाहे वो होली जैसा त्यौहार ही क्यों ना हो। सिविक सेंस के पब्लिक के अंदर कैसे बिहेव करना है, सफाई और हाइजीन और पर्सनल स्पेस का क्या मतलब है, ये चीजें ढूंढने पर भी देखने को नहीं मिलती, और वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर। फीमेल फॉरेन टूरिस्ट को जबरदस्ती जगह जगह रोककर हरासमेंट और जबरदस्ती की सेल्फी की डिमांड की जाती है और इनको हरासा किया जाता है। उनको ऐसे घेर लिया जाता है जैसे वो कोई एलियन मखलूक हो। पर मॉन्यूमेंट्स पर भी इतना कचरा होता है कि आप इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि एक फीमेल टूरिस्ट ये बता रही है कि ताजमहल के बिल्कुल करीब में कितना बड़ा गंदा नाला मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोग सफाई पर तवज्जो ही नहीं देते। अब देखें, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान में ये सब कुछ ना होने के बराबर है। और अगर कोई केस सालों में एक बार रिपोर्ट भी होता है तो सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने की वजह से इसको इंतहाई सीरियस लिया जाता है, क्योंकि ये मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना, क्योंकि वेस्ट के अंदर इसको एक दहशतगर्द मुल्क का लेबल लगा दिया गया था, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह से और इंस्टेबिलिटी की वजह से वेस्टर्न टूरिज्म यहाँ पर आना तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लोग है कि यहाँ पर मेहमान को अब भी अल्लाह का मेहमान समझने वाली सोच बाकी है, खास तौर पर नॉर्थ के पठान तो बहुत ही मेहमान नवाज है, और ये इनकी इज्जत का मसला होता है, ना कि बिजनेस का। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट से पैसे लेने की बजाय इनको खाना खिलाने, चाय पेश करने, रिहाइश मुफ्त देने की रिवायात आज भी नजर आती हैं, जो कि मेहमान नवाजी का असल मतलब होता है। तो इसीलिए वही व्लॉगर जो कि दिल्ली या वाराणसी के अंदर हरासा होकर पाकिस्तान आता है, वही लाहौर, स्कर्दू या पेशावर के अंदर खुद को महफूज तरीन इंसान समझता है। इंडिया में पिछले 30 से 40 सालों के अंदर टूरिज्म और बिजनेस दोनों ने एक जबरदस्त शक्ल इख्तियार कर ली है, और इसी वजह से यहाँ के लोगों के ज़हन के अंदर ये बैठ गया है कि हर चीज पैसा है, हर मौका कमाने का मौका है। लिहाजा वहाँ का आम शहरी भी टूरिस्ट को एक चलती फिरती ATM समझता है, जिसे जितना हो सके लूट लें। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर खुद पसंदी यानी सेल्फ ऑब्सेशन और हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, यानी हम दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं, सबसे पावरफुल हैं। Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. या इन शॉर्ट अमेरिका क्या कहता है? तरह लड़ते हैं ये मीडिया वाले। आज हम कहते हैं तू क्या है बे? अब जरा गौर करें कि साइकोलॉजिकली तौर पर ऐसा माहौल एक आम शहरी को दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बेहतर साबित करने की तरफ धकेलता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ के लोगों के रवैये सख्त होना शुरू हो जाते हैं, वो मगरूर मुतकब्बिर होने लगते हैं और लोगों के साथ इंतहाई बुरा रवैया रखते हैं, इंतहाई अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर तालीम की कमी और इसके अलावा गुर्बत भी इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करती है। पाकिस्तान में मीडिया अपनी खामियों के साथ मौजूद है, लेकिन अवामी सतह पर अब भी मेहमान नवाजी, इज्जत, इस्लामी भाईचारे जैसे नज़रियात अभी भी मौजूद हैं, और यही इखलाकी बुनियाद टूरिस्ट के साथ ताल्लुक के अंदर फर्क पैदा करती है। और सबसे बड़ा फर्क इस्लाम इनका मजहब पैदा करता है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के अंदर मेहमान नवाजी को ईमान का हिस्सा कहा गया है, और पाकिस्तानी माशरा बावजूद अपने मसाइल के अभी भी मजहबी इक़्तिदार से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, और यही इखलाकी बुनियाद गैर मुल्कियों के साथ खलूस, एहतराम और मेहमान नवाजी की सूरत में जाहिर होती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के अंदर इन स्कैम के अंदर मुलविस लोग जो कि हरासमेंट जैसा सीरियस क्राइम करते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, इन पर कोई सीरियस कार्रवाई नहीं होती, और इसी वजह से बाकी लोगों को भी ये सब करने का हौसला मिलता है, खास तौर पर पब्लिक प्लेसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर ट्रेन की मिसाल ले लें, यहाँ पर तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि हाल ही में वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर टूरिस्ट यहाँ पर धक्कम, पेल और बदबू की वजह से इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, जगहों को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर सारी बात नियत की है। ये हुकूमत का काम होता है कि ऐसे सख्त कवानीन बनाए, ऐसी सख्त सजाएं दे कि लोग डर कर इस क्राइम से बाज रहें। और दूसरी बात कि हुकूमत फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पर महफूज तस्वुर कराए, उनको हर तरह की सहूलियात दे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तालीम की इंतहाई कमी है और लोगों को सिविक सेंस का नाम ही नहीं पता। वैसे हकीकत यह है कि जब भारतीय हुकूमत को अपने लोगों का ख्याल नहीं है तो वो फॉरेन टूरिस्ट का ख्याल क्यों करने लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, विराट कोहली इंडिया छोड़ के लंदन क्यों कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ जहाँ के लोगों को खुद रोकना पड़ेगी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, कि जहाँ पर भी कोई स्कैम होता देखें तो मोबाइल निकाल कर इसकी वीडियो बनाकर इसको रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर डाल दें, इन लोगों को एक्सपोज करें, इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करें। फॉरेन टूरिस्ट की जितना हो सके इज्जत करें और इनको यहाँ पर महफूज तस्वुर करवाएं।
अपने आसपास सफाई रखें, सिविक सेंस को फॉलो करें और अगर हर बिल्कुल। शख्स अपने देखो, तौर पर इसमें सफाई ज्यादा करना शुरू government करे, का इसको हाथ जिम्मेदारी नहीं है, समझे, मैं- तो इस मसले लोगों को को हल खुद करना अकल होनी इतना भी चाहिए, मुश्किल government नहीं भी क्या है। करेगी? और इसी चीज को देखकर ही लोग मुतासिर होंगे कि कम से कम ये ये लोग क्या इसको कर रहे हैं? ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का मौशरा आज ज़्यादातर मादी या फिर कमर्शलाइज्ड हो गया है, जबकि पाकिस्तान का मौशरा अब भी इखलाकी और रिवायती बुनियादों पर कायम है। और इसलिए हम देखते हैं कि एक जगह पर पैसा मरकज बन चुका है तो दूसरी जगह पर इज्जत, और यही फर्क दोनों मुल्कों को टूरिस्ट के लिए अलग अलग ऑप्शन बना रहा है। बिल्कुल। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। गाइस मतलब वीडियो देख के ना हमें शर्म भी आ रही आती थी। है हमें, पर हाँ अच्छा लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी इमेज चेंज कर ली है, लेकिन एज अ इंडियन हमें बहुत शर्म आती वीडियो है। देख के शर्म आ रही थी, क्योंकि ये ना जितनी भी उन्होंने बातें की ना इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में स्पेशली, और बेसिकली लोगों की गलती है, मतलब इसमें सरकार भी क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं अरे लगता नहीं, क्यों गवर्नमेंट नहीं कर सकती सरकार यार, मेरी बात सुनो, उन्होंने बिल्कुल सही बोला ये तो वीडियो में। सिविक सेंस लोगों में होनी नहीं, चाहिए ना। लोगों में तभी सिविक सेंस आएगी जब पीछे से सरकार का डंडा चलता हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जूतों के भूत होते हैं, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, ये और वाला इंडिया के हाँ। कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर लोग, मतलब गवर्नमेंट का इतना ही हाथ होना चाहिए जितना मुझे लगता है यार कि अगर मेरी कोई बात- गलती करता नहीं, है ना हम- उसको हम- जेल में फेंक दो। गाइस हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ वेल प्लान्ड सिटी है, बहुत मेंटेन्ड सिटी है। हाँ, ये तो बात यहाँ है। भी मतलब साइकिल अब के तो यहाँ का भी सिस्टम खराब हो चुका है। साइकिल के लिए यहाँ पे अलग लेन बनी हुई है, मतलब पार्किंग के लिए अलग है, मतलब बहुत सिस्टमेटिकल है। फिर भी यहाँ पे लोग ना, जहाँ पे साइकिल वाली लेन है वहां पे गाड़ियां लेके जा रहे होते हैं और वहीं और थूक अब रहे तो होते हैं। जैसे सड़कें चंडीगढ़ की फेमस होती थी कि चंडीगढ़ जैसी सड़कें स्मूथ है ही अब नहीं, रही नहीं, अब खड्डे ही खड्डे खड्डे दिखते हैं। चलो खड्डों की बात क्या करें, कि सिविक सेंस तो ना, Cleanliness सिविक नहीं सेंस है, तो मतलब- लोगों में है ही नहीं। अब फॉरेन टूरिस्ट को देख के तो ऐसे टूट पड़ते हैं ना इंडिया के, चाहे दुकानदार हो, चाहे सही बात टैक्सी है। वाला हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो। पहली बात तो ये है कि अगर बाई चांस कोई फीमेल टूरिस्ट दिख गई, तो पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं कि क्या ही क्या आ गया, सोच नहीं एलियन लेते आ गया यार, यहाँ पे। उनके साथ ना सेल्फी ऐसे खींचते, सर्कल बना लेंगे, बेचारों को सांस लेने की जगह नहीं। देखो अगर मैं टूरिस्ट हूँ, किसी भी मैं कंट्री में जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ है, अगर इसको कोई घेर ले वहां पे, तो मैं कितना अनकंफर्टेबल फील करूंगा, इसकी तो बात ही छोड़ो। तो सेम सोचो। और तो और उनके साथ गलत जगह पे टचिंग, होली वाले दिन, हाँ, होली वाले मतलब दिन आप सोच लो कि आप धार्मिक स्थान जो वृंदावन जहाँ होली खेली जाती है, आप एज अ अकेली वृंदावन की बात नहीं है यार, हर जगह वहां पीछे। तो बिल्कुल नहीं जा सकते आप। लास्ट टाइम टूरिस्ट आए थे, आई थिंक जापान का टूरिस्ट था, वो कपल थे, वो उनके साथ दिल्ली में छेड़खानी हुई एक टूरिस्ट के साथ, वो नेशनल मुद्दा बना था। आई थिंक उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी लोगों ने, हाँ, लड़की हाँ के साथ लड़की, तो गलत वो किया पूरे था। वर्ल्ड में वो वायरल हुआ था। इतने शेम आई ना हमें कि यार हौशी हो तुम लोग, सही शर्म बात नहीं है। आती। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बातें इंडियन गवर्नमेंट इसी को नहीं वजह पता से हमारे इंडिया में टूरिज्म खत्म होने को आ गया हुआ है। यार। क्यों आएंगे, मेरी बात सुनो, कोई अपना पैसा खर्च के आएगा, अपना कीमती वक्त जाया करके आएगा, वो ऐसी कंट्री में क्यों जाना चाहेगा जहां ना आपके बच्चे सेफ हैं, जहां ना आपकी वाइफ सेफ है, ना सही आप बात खुद है। सेफ हो। अगर आप सपोज करो, अगर आप लोकल Guys, नहीं नहीं, एक मिनट बात सुनो, अगर आप लोकल बंदों को कुछ बोल देते हो, अपोज करते हो ना उनकी बातों को, तो वो आपसे लड़ने पड़ते हैं, वो आपको मारने भी ये आ जाते हैं। सिर्फ मैं कहती हूँ फॉरेनर के लिए नहीं है। अब आप सुनो तो हम जहाँ हम रहते हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पे भी रेप्स वगैरह बहुत होने लगी हैं। इंडियन गर्ल्स ही सेफ नहीं है, तो आप अरे, कैसे सोच सकते हो कि फॉरेनर चलो गर्ल्स सेफ रेप होंगी? की बात नहीं मैं कर रहा, बात ये है कि गंदगी जगह जगह थूकना, सरकार वाकई सही है, सरकार हर जगह आपका साथ नहीं दे सकती ना, कुछ सिविल सेंस तो खुद को होनी चाहिए। चलो मैं इस बात की बात नहीं करता कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है या फॉरेनर क्या सोचते हैं, लेकिन हम खुद ना एज अ इंडियन अशेम्ड हैं, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना, जो सही मायने में पढ़े लिखे लोग हैं, हम सही जैसे बात लोग है। हैं, हम खुद बोलते हैं कि यार लोगों में सिविक सेंस है ही नहीं। ये तो देखो सफाई वगैरह तो हमने खुद चाहे- रखनी है ना। अब वो तो सरकार आके नहीं तुम्हें बोलने वाली कि भाई यहाँ गंद मत बात- डालो, वहां मत डालो। बात ना अनपढ़ता की नहीं है, अनएजुकेशन की नहीं है, गरीबी की भी नहीं, गरीब पाकिस्तान में भी है, अनपढ़ पाकिस्तान में भी है, सही बात है। लेकिन वही लोग सेम पाकिस्तान में कितने दिल के साफ हैं, वो फॉरेन टूरिस्ट को एक्चुअल में भगवान मानते हैं अपना, और हम बोलते हैं जी भगवान, टूरिस्ट तो भगवान के समान होता है, लेकिन हम सिर्फ बोलते ही हैं, बोलते करते हैं, नहीं है। हाँ। और वो लोग बोलते भी नहीं, फिर भी वो करते हैं मेहमान नवाजी, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो बहुत अच्छा लगा हमें, और वीडियोस के थ्रू हमें ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग सच में कितने दिल के साफ हैं। हाँ, साफ है। और मेरे को ना एक इंसिडेंट में मेरे को याद आ रहा है, अभी
रिसेंटली जो अभी लास्ट वर्ल्ड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान में, तो इंडिया ने वहां पर दौरा नहीं किया था। इंडिया के मैच आई थिंक वहां पे खेले गए थे, दुबई में, यूएई में खेले गए थे सारे मैच। तो इंडिया के जर्नलिस्ट गए थे यहाँ से, आई थिंक आज तक के गए थे, जर्नलिस्ट गए थे। तो सोचो जर्नलिस्ट के लिए विक्रांत गुप्ता जी थे और भी थे आई थिंक एक दो, तो उनके लिए इतना प्यार मतलब लोगों ने दिया। लोगों ने चौराहे जाम कर दिए लाहौर के, इस्लामाबाद के, लाहौर के, उनको फ्री में खाना खिलाया। और उनके पीछे पीछे मीडिया वाले मतलब इतनी मेहमान वजह, वो अपने आप को सेलिब्रिटी फील कर रहे थे पाकिस्तान में, और वो उनको फ्री। बट इंडिया में होते तो ऐसा कुछ ना होता। इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में स्पेशली में टूरिस्ट के लिए ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्हीं हरकतों की वजह से, वही तो बता रही हूँ ना, इन्हीं हरकतों की वजह से टूरिज्म खत्म होता जा रहा है इंडिया में। अभी है ना, अभी मैं आपको रिसेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही दीवा फ्लॉलेस नाम करके मतलब इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, बहुत बढ़िया, आई थिंक दुबई की है वो। अच्छा। तो वो आई हुई है, चंडीगढ़ में आई थी वो। तो मैंने उनके शॉर्ट्स देखे, रील्स देखी मैंने, तो भाई साहब ऐसे लोग सेल्फी ले रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनके जो गार्ड्स हैं ना, उनको धक्का देना पड़ रहा है लोगों को, भाई पीछे हट जा, तू लड़की के साथ टच क्यों कर रहा है तू। पता क्या है गाइस, फीमेल्स को ना इंस्टिंक्ट होता है कि आप टच कैसे कर रहे हो। उनको भगवान की साइड से मतलब कह लो कि एक शक्ति होती है कि आप समझ जाती हैं कोई लड़का उनको किस हिसाब से टच कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने इंडियन मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि किसी भी लड़की को या कोई भी फॉरेनर मतलब व्लॉगर आती है, कोई भी आते हैं, उनको प्लीज अनकंफर्टेबल मत कराइए। अगर आपको सेल्फी लेनी तो पूछिए उनसे कि हाँ क्या एक ना अदब होता है कि मैम मैं क्या आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ, कैन आई टेक सेल्फी, तो ये तो होगा अदब। अगर उसने परमिशन दी आगे से फिर आप ले हो ना, पर आप जबरदस्ती करते हो, इवन कि ऐसे हाथ पकड़ते हैं, तो सोचो यार कौन फॉरेनर पे दोबारा, चलो एक बार तो वो गलती से आ जाते हैं, और दूसरी बार पता क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं जी इंडिया के बारे में लोग गलत छवि, गलत इमेज शो करते हैं जी, ऐसा तो इंडिया है ही नहीं। भाई जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब फॉरेन टूरिस्ट को आप ऐसा बिहेव करोगे उनको फर्स्ट टाइम में, तो वो आगे जितने भी उसके कलीग्स होंगे, दोस्त होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, जो अपने देश में जाएगा तो वो ये बोलेगा इंडिया के लोग गंदे हैं। वर्ड टू माउथ जो आपकी पब्लिसिटी हो रही है वो तो बेकार ही हो रही है ना इंडिया। वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि इंडिया मत जाना भाई, वहां तो आप सेफ नहीं हो, वहां खाना अच्छा नहीं है, अनहाइजीनिक है, सफाई नहीं है, और लोग छेड़ते हैं लड़कियों को, गलत निगाह से। ये बात तो है कि आपका जैसे आप बिहेव करोगे वैसे आपका मतलब बन जाएगी इमेज। और दूसरी बात है कि ये जो हमारे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, स्पेशली दिल्ली में, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, ये तो लूटते यार, इतना लूटते हैं टूरिस्ट को। 300 रुपए की अगर सपोज करो कोई कपड़ा भी उन्होंने खरीदना है तो बताएंगे 3000 का, 4000 का। ये नोटिस किया है मैंने खुद वीडियो देखी है। एक मतलब बनाना यहाँ पे आई थिंक 40-50 रुपए दर्जन है, ठीक है, तो उनको दे रहे थे, बोल रहा है 200 रुपए, और एक दूसरे बंदे ने बोल दिया भाई क्यों इसको झूठ बोल रहा है, कि क्यों टूरिस्ट को लूट रहा है तू, तब जाके उसको शर्म आई। तो ये ऐसे तो लोग हैं, मतलब फॉरेनर्स को देख के तो शॉपकीपर्स ना ऐसे सोच लेते हैं बस यही पैसा छापने की मशीन आ गई है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं ना सच में पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, चाहे छवि जैसी भी हो पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में, लेकिन दिल बहुत साफ है, दिल बहुत बड़ा है उनका। ये हमने देखा हुआ है, मतलब ये हमने आंखों देखी हुई ये चीजें। क्योंकि मतलब यार कौन करता है, अगर मेरी दुकान में कोई आएगा तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगा कि कुछ आपको फ्री में मैं दूंगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, थोड़े लेंगे हम, पर लेंगे, मतलब हम इंडियंस ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन फ्री में लोग तो उनको फ्री में खिला रहे हैं पाकिस्तान के। कितना बड़ा दिल है पाकिस्तान के लोगों का, इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वो प्रेफर भी यही करते हैं कि हम पाकिस्तान जाए, हम इंडिया। और भाई सच बताऊं, इंडिया के लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से ना, अकेली इंडिया की मतलब लोगों की बात नहीं है, इंडिया के जो मीडिया, जो पेपराजी हैं, वो बॉम्बे चले जाओ आप, छोटा से छोटा सेलिब्रिटी भी होगा ना, उसके पीछे ऐसे पड़ते हैं। अभी पीछे धर्मेंद्र जी की डेथ हुई भी नहीं थी, हाँ, तो तब भी उन्होंने इतनी वो धर्मेंद्र जी के घर के बाहर मीडिया लग गया, सारा क्योस क्रिएट कर दिया कि उनके बेटे को आके गालियां निकालनी पड़ी। सन्नी देओल जी बाहर है, उन्होंने बोला कि आपके घर में भाई बहन माँ बेटी नहीं है, क्यों हमारी जिंदगी हराम कर रखी। छोटी से छोटी मोमेंट को कैप्चर करने लग जाते हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से कई बिलियनियर, कई मिलियनियर, इवन की सेलिब्रिटी इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। उनमें से अपने फॉरेन में घर बना लिए हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है विराट कोहली का। वो क्यों नहीं इंडिया में अब रह रहा, इसीलिए नहीं रह रहा क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन जैसे विराट कोहली दिखते, लोग ना ऐसे घेरा डाल लेते हैं। वो बेचारा, अगर प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए फिर कौन जिम्मेदार है। और यही मिस हैपनिंग हुई भी थी बैंगलोर में, जब आईपीएल का मैच वो जीते थे, बिल्कुल ट्रॉफी जीते थे।
तो ये चीजें सही नहीं है। इंडिया के लोगों को खुद सोचना चाहिए। इंडिया ठीक है, इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, नो डाउट, पर अगर लोग थोड़े में खुद में थोड़ी सिविक सेंस लाए ना, सबको मिलजुल के ये काम करना होगा। बाकी वीडियो ओवरऑल अच्छी थी, मतलब पाकिस्तान की गुड इमेज इस वीडियो के थ्रू सामने आई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।